Hello friends, how are you? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. In this video, we will talk about an extract I'm Hungry from a book Black Boy written by Richard Wright. सो आज हम इस वीडियो में एक एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे आई एम हंगरी की जो ओरिजिनली बुक में से लिया गया है जिसका नाम द ब्लैक बॉय है जिसे रिचर्ड राइट ने लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर वी गो टू द स्टोरी फर्स्ट वी विल लुक एट ऑथर्स इंट्रोडक्शन. Richard Wright is our author. The author of the book Black Boy is Richard Wright. He was the pioneer of African American literature. His notable works are first, his novel Native Son, which was published in 1940, and his autobiography Black Boy in 1945. These are the two notable works for which he was very famous. His first novel was written in 1935, namely Cesspool, which was published posthumously in 1963 as Lord Today. उनकी पहली नॉवेल सेसपूल थी जो 1935 में उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो पब्लिश 1963 में उनके डाइड होने के बाद हुई. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स मूव टू द स्टोरी. One day my mother told me that we were going to Memphis on a boat, the Kate Adams, and my eagerness thereafter made the days seem endless. Each night I went to bed hoping that next morning would be the day of departure. एक दिन ऑथर की मम्मी ने ऑथर से कहा कि हम मेम्फिस जा रहे हैं थ्रू अ बोट, वाया बोट. ये सुनकर ऑथर की ईगरनेस बहुत बढ़ गई. वो दिन रात बस यही सोचते थे कि नेक्स्ट डे जो होगा वो डिपार्चर का होगा और कब ये डिपार्चर दिन आएगा और वो लोग बोट पे जाएंगे. इसी में ऑथर उनकी मम्मी को काफ़ी क्वेश्चंस पूछते थे बोट रिलेटेड. हाउ बिग इज़ द बोट, आई आस्क्ड माई मदर. एज बिग एज माउंटेन, शी रिप्लाइड. हैज़ इट गॉट अ विसल? येस. डज द विसल ब्लो? येस. व्हेन द कैप्टन वांट्स टू ब्लो. Why do they call it Kate Adams? Because that's the boat's name. What color is the boat? White. How long we be on the boat? All day and all night. Will we sleep on the boat? Yes. When we get sleepy, we'll sleep. Now shh. और जो ऑथर थे उस टाइम पे वो छोटे बच्चे थे, तो वो बोट का नाम सुनते वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और वो अपनी मम्मी से ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं. और इन क्वेश्चन के बेसिस पर उन्होंने एक इमेजिनेटरी बोट अपने अंदर क्रिएट कर ली कि कैसी दिखती होगी, बड़ी होगी, वाइट होगी, ब्राइट वाइट होगी. लेकिन उनकी इमेजिनेशन नहीं मैच हुई. देखते हैं. यस. फॉर डेज आई हैड ड्रीम्ड अबाउट अ ह्यूज वाइट बोट floating on a vast body of water. But when my mother took me down to the leave on the day of leaving, I saw a tiny dirty boat that was not at all like the boat I had imagined. I was disappointed and time to go on board. I cried and my mother thought that I did not want to go with her to Memphis. I could not tell her what the trouble was. Solace came when I wandered about the boat and gazed at negroes throwing dice, drinking whiskey, playing cards, lolling box, eating, talking, and singing. My father took me down into engine room and the throbbing machine enthralled me for hours. जैसी हमने बात की, जब वो डिपार्चर का डे आया और जब ऑथर ने बोट को देखा डॉक पे खड़े होके, तो वो बोट उनकी इमेजिनेशन से थोड़ी भी मैच नहीं हुई. एक्चुअल में वो बोट कैसी थी? टाइनी और डर्टी थी. और ऑथर ने उसका पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजिनेशन किया था. ये देख कर ऑथर डिसअपॉइंट हो गए और रोने लगे. उनकी मदर को लगा कि शायद वो मेम्फिस नहीं जाना चाहते इसलिए वो रो रहे हैं. लेकिन ऑथर अपनी मम्मी को सही रीज़न बता नहीं पाए. फिर वो अबॉर्ड किया उन्होंने, ऊपर बोट पे गए और वहाँ उन्हें ये देख के शांति हुई कि उनके साथ और भी सारे पैसेंजर्स हैं. वहाँ पे जो नीग्रोस थे वो डाइस खेल रहे थे, ड्रिंकिंग विस्की, कार्ड प्ले कर रहे थे, बॉक्सेस पे लोलिंग कर रहे थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, गाने गा रहे थे. ऑथर के फादर उन्हें
इंजन रूम में ले गए। वहाँ मशीन्स की आवाज़ ने उन्हें घंटों तक परेशान किया। In Memphis, we lived in a one-story brick tenement. The stone buildings and the concrete pavements looked bleak and hostile to me. The absence of green growing things made the city seem dead. Living space for the four of us, my mother, my brother, my father, and me, was a kitchen and a bedroom. In front and rear, we paved areas in which my brother and I could play. But for days, I was afraid to go into the strange city streets alone. मेम्फिस में उनकी फैमिली एक वन स्टोरी ब्रिक टेनामेंट में रहा करती थी, कि जो टेनामेंट ऑथर को काफ़ी ब्लीक और हॉस्टाइल लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी भी ग्रीनरी नहीं थी, ट्रीज़ नहीं थे, बुशेस नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे, और उनको सिटी सीम्स डेड, सिटी डेड लगता था क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी नहीं थी। और उन चारों के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए लिविंग स्पेस में सिर्फ एक किचन और एक बेडरूम था। और उस घर के आगे और पीछे उन्होंने एरिया पेव्ड किया था कि जहाँ पे वो ऑथर और उनके ब्रदर खेल पाएँ। वो काफ़ी दिनों तक खेलने भी नहीं गए क्योंकि उन्हें स्ट्रेंज सिटी में जाने से, स्ट्रेंज सिटी के स्ट्रेंज स्ट्रीट में जाने से डर लग रहा था। It was in this tenement that personality of my father first came fully into orbit of my concern. He worked as a night porter in a Bay Street drugstore, and he became important and forbidding to me. Only when I learned that I could not make noise when he was asleep in daytime. He was lawgiver in our family. I never laughed in his presence. I used to lurk timidly in the kitchen doorway and watch his huge body sitting slumped at the table. I stared at him with awe as he gulped his beer from a tin bucket. As he ate long and heavily, Shard belched closed his eyes to nod on a stuffed belly. He was quite fat, and his bloated stomach always lapped over his belt. He was always a stranger to me, always somehow alien and remote. सो इस एक्सट्रैक्ट में ऑथर ने अपने फादर का एक कैरेक्टर स्केच पिक किया है। वो काफ़ी डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच है। ऑथर का कहना है कि उनको पहली बार उनके फादर की एक्चुअल पर्सनालिटी दिखी, कि जहाँ पे वो उन्हें समझ पाए, ऑथर उनके फादर को समझ पाए एक्चुअल। उनके फादर बेल स्ट्रीट ड्रग स्टोर में नाइट पोर्टर का काम करते थे। वो उस टाइम फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुके थे क्योंकि वो लॉ गिवर थे, क्योंकि वो ही पैसा कमाते के लाते थे और खाना आता था। वो ऑथर ने बताया है कि कैसे वो किचन के डोरवे से उनके फादर को देखते थे कि जब वो खाना खा रहे होते हो या बियर पी रहे होते, टिमिडली देखते थे, काफ़ी डरते डरते स्टेयर किया करते थे। जब उसके फादर घर पे होते थे तब वो थोड़ी भी आवाज़ भी नहीं करते क्योंकि वो उनके फादर से बहुत बहुत डरते थे। Hunger stole upon me slowly, that at first I was not aware of what hunger really meant. Hunger had always been more or less at my elbow when I played, but now I began to wake up at night to find hunger standing at my bedside, staring at me gauntly. The hunger I had known before, this had been no green, hostile stranger. It had been a normal hunger that had made me beg constantly for bread. When I ate crust or two, I was satisfied. But this new hunger baffled me, scared me, made me angry and insistent. Whenever I begged for food, now my mother would pour me a cup of tea, which would still the clamor in my stomach for a moment or two. But later, I would feel like nudging my hunger, nudging my ribs, twisting my empty guts until they ached. I would grow dizzy and my vision would dim. I become less active in my play, and for the first time in my life, I had paused to and think of what was happening to me. इसमें इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने उनके परिवार को जो परेशानी हुई उसकी भी एक बात की है। उनके फादर खाना लाया करते थे लेकिन उनके फादर उनको छोड़ के चले गए थे। सो जब ऑथर को भूख लगती है तो वो भूख से परेशान हो जाते हैं, जो कि वो पहले नहीं हुआ करते थे। ये हंगर जो हुई थी वो उनके लिए हॉस्टाइल स्ट्रेंजर थी एंड थोड़ी भी ग्रीम नहीं थी। जब वो उनकी मम्मी से हंगर की बात करते थे, तो
तो उनकी मम्मी उन्हें कप भर के टी दे देती थी, जो ऑथर के लिए कुछ मिनटों तक अपने हंगरी को सेटिस्फाई करने के लिए ठीक थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका हंगर वापस से आ जाता था और ऑथर फील्स लाइक द हंगर वॉज नजिंग हिज रिप्स, ट्विस्टिंग हिज एम्प्टी गट्स अनटिल दे एच। उनका पेट दर्द करने लगता था और वो डिजी हो जाते थे, उनका विजन डीम हो जाता था और वो प्ले जब करने जाते तभी वो लेस एक्टिव हो जाते थे। तो वो पहली बार उन्होंने लाइफ में एक पॉज लिया और अपने आप को पूछा कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम। सो लेट्स गो टू फॉरवर्ड। मामा आई एम हंग्री, ये ऑथर और उनके मामा का कन्वर्जेशन है। मामा आई एम हंग्री, कंप्लेन्ड वन आफ्टरनून, जंप अप एंड कैच अ कंगरी, शी सेड, ट्राइंग टू मेक मी लाफ एंड फॉरगॉट, व्हाट्स अ कंगरी, इट्स व्हाट लिटल बॉयज ईट when they get hungry, she said. What does it taste like? I don't know. Then why do you tell me to catch one? Because you said that you were hungry, she said, smiling. I sensed that she was teasing me and it made me angry. जब उन्होंने एक दोपहर अपनी मम्मी से कंप्लेन की कि मुझे भूख लगी, खाना दो, तो उनकी मम्मी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे थोड़ी आयनिकल मजाक किया। आयनिकल मतलब हंगरी कंगरी, वैसे जो लास्ट शब्द आयनिकल है वैसे उनसे थोड़ी मजाक की ताकि वो खाने के लिए भूल जाए। लेकिन वो ऑथर नहीं बोले, उल्टा वो और गुस्सा हो गए। बट आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट, यू विल हैव टू वेट, बट आई वॉन्ट टू ईट नाउ, बट देयर इज़ नथिंग टू ईट, शी टोल्ड मी। वाई? जस्ट बिकॉज देयर इज़ नोन, शी एक्सप्लेन, बट आई वॉन्ट टू ईट। I said, beginning to cry, you'll just have to wait, she said again. But why? For God to send some food. When is he going to send it? I don't know, but I am hungry. She was ironing and she paused and looked at me with tears in her eyes. ऑथर उनकी माता से फिर पूछते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, आई एम हंग्री, मुझे खाना चाहिए। उनकी मम्मी उन्हें रिप्लाई करती है कि तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी खाने के लिए है नहीं। ऑथर पूछते क्यों? तो उनकी मामा कहती है बिकॉज यहाँ पे कोई है नहीं। कोई है नहीं का मतलब देयर इज़ नोन, इट मीन्स कोई कमाने वाला नहीं है उनके घर में। जो मेन जो है मीनिंग वो ये है। बट ऑथर कहते हैं कि मुझे खाना चाहिए। उनकी मम्मी कहती है कि सो वेट फॉर सम टाइम। ऑथर ने पूछा वाई? मम्मी रिप्लाइड करती है कि गॉड जब तक सेंड करे तब। ऑथर कहते कब सेंड करेंगे? मम्मी कहती है पता नहीं, लेकिन तुम्हें वेट करना होगा। और ये कह के उनकी मम्मी पॉज हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो उनकी मम्मी उसे पूछती है वेयर इज़ योर फादर, शी आस्क्ड मी। आई स्टेयर्ड इन bewilderment. Yes, it was true that my father had not come home to sleep for many days, and I could make as much as noise as I wanted. Though I had not known why he was absent, I had been glad that he was not there to shout his restrictions at me. But it had never occurred me to that his absence would mean that would be no food. So उनकी मम्मी उनसे पूछती है कि वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ है। सो उनकी मम्मी उन्हें बताना चाहती है कि कौन वो उनकी मम्मी किसकी बात कर रही है कि कौन कमाने वाला नहीं है। उनकी मम्मी उनसे पूछती है तुम्हारे फादर कहाँ हैं। ऑथर ये सुनते उनका सर नीचे करके खड़े रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि मम्मी की बात सही है, फादर काफ़ी दिनों से घर आए नहीं हैं। इसीलिए ऑथर जितनी चाहे उतनी मस्ती कर सकते हैं, जितना चाहे उतना नॉइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं था। बट उन्हें ये कभी नहीं पता था कि फादर के एब्सेंस में या उनके ना होने से घर में खाने की कमी होगी। ऑथर मम्मी को रिप्लाइड करते हैं उनकी माता को, आई डोंट नो, आई सेड। हु ब्रिंग्स फूड इन टू द हाउस, मदर आस्क्ड। पापा, आई सेड, ही ऑलवेज ब्रॉट फूड। वेल योर फादर इजंट हियर नाउ, शी सेड। वेयर इज ही? आई डोंट नो, शी सेड। You'll have to wait until I get a job and buy food, she said. But I am hungry, I whimpered, stomping my feet. उनकी माता ने जो उनसे क्वेश्चन पूछा था वेयर इज़ योर फादर, ऑथर रिप्लाई करते हैं कि आई डोंट नो। उनकी मम्मी पूछती है कि घर में कौन खाना लाता था, तो ऑथर ने कहा कि पापा लाते थे, वो ही हमेशा लाते थे।
तो सो मम्मी सेड कि अब तो वो वहाँ नहीं है। ऑथर पूछते कि कहाँ है, तो फिर मदर का रिप्लाई ये आता है कि उन्हें भी नहीं मालूम, और वो ये कहती है कि तुम्हें कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा कि जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए और मैं तुम्हारे लिए कुछ उन पैसों से कुछ फूड खरीद सकूं। ये सुनकर ऑथर और भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं बट आई एम हंग्री नाउ। रोते रोते वो बोलते हैं, और वो छोटे बच्चे जैसे अपने फीट जो स्टॉम्प करते हैं फ्लोर पे, वैसे वो स्टॉम्पिंग हिज फीट स्टार्टेड क्राइंग। So next, as the day slide past, the image of my father became associated with my pangs of hunger, and whenever I felt hunger, I thought of him with a deep biological bitterness. और जब जब उन्हें भूख लगती थी, हंगर होता था, तो वो अपने फादर का ही सोचते थे, और उनको वो ही सौरव, वो ही बिटरनेस और वो ही दुख याद आता था कि जो वो पहले फेस कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके फादर उनके पास नहीं थे। सो हेयर आर extract is completed. I think that you have learned or understand the story easily. मुझे पूरा विश्वास है कि आपने स्टोरी अच्छे से समझ ली होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट मी, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल सॉल्व दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। मैं फ्रीक्वेंटली ऐसे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। सो थैंक you so much guys for hearing me. Thank you.